Chapter 1, Business Environment. First we'll learn what is the meaning of business. The term business refers to the state of being busy for an individual, group, organization or society. The term is also known as, it can be said as an occupation or a profession. Otherwise you can say it is a particular type of entity, company or a corporation. For the purpose of a student, we just can know the meaning of business is it consists of purchase, sale, manufacture, processing, and of marketing of products or services. People, they invest in business for getting a return. It is a reward for risk taking. So the promoters, they take the risk and finally after a while they get the reward. As far as the owners are concerned, their motive is to earn profit. Peter Drucker, the management guru, he says a business has basically two objectives. The first, it is created and managed by people, and the second, obviously the most important, it is called earning a huge profit. But usually profit is not the only objective. There are many more objectives of a business. Like the first, it can be survival. Survival is the will and anxiety to perpetuate into the future as long as possible. The ability to survive is a function of the nature of ownership, nature of business competence of management, general and industry conditions, financial strength of the enterprise, and so on. Now the second objective of business is called stability. It is one of the most important objectives. In a sense, stability is the least expensive and risky objective in terms of managerial time and talent and other resources. A stable and steady enterprise minimizes managerial tensions and demands less dynamism. The third objective is called growth. Obviously, a business, when it starts, it's not on a high peak of the success chart. Gradually, when the business starts doing the business or transactions, it starts growing. Enterprise growth may take one or more of the forms like increase in assets, manufacturing facilities, increase in sales volume in existing products or through new products, improvement in profits, and many more things. Now the fourth objective is called efficiency. A business, if it's not working efficiently, then definitely they will not achieve the objective of the promoters or the organizational objectives. And it is really important for a business to work efficiently. Otherwise they will be wasting their resources. And the last objective is called profitability. It is the overall measure of performance. This is the main objective of a business. And it has a long-term perspective that includes development of wealth, increased goodwill, and benefits to all shareholders, or you can say to. Now, the next point in this chapter is called environmental influences on business. बेसिकली जब हम लोग बिजनेस करने जा रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि सब अपने आप को देख के हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारे आसपास चीजें क्या हो रही हैं. एनवायरनमेंट बेसिकली आपके एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स को मिला के बनाया जाता है. If you're a businessman, if you are not able to analyze the environment, then definitely you cannot work in a long-term perspective, and definitely you will have to face some threats from outside, and even you can lose some opportunity. A business function within the whole gambit of relevant environment and have to negotiate their way through it. The extent to which the business thrives depends on the manner in which it interacts with its environment. अगर आपको अपना environment का knowledge नहीं है, then definitely आप कोई ना कोई गलत decision ले सकते हो. And अगर आप environment को अच्छे से read करते हो, तो हो सकता है कि situation को आप अपने favor में कर सको. Now, a business which continually remains passive to the relevant changes in the environment is destined to gradually fade away in oblivion. यानी कि अगर आप अपने environment को देख नहीं पा रहे हो, तो obviously आप अपने आप को change नहीं कर सकते. And अगर change हो रहा है बाहर और वो आपके against हो रहा है, तो बहुत जल्दी आप business से हट जाओगे. Now, there were a few authors, they say that environment includes factors outside the firm which can lead to opportunities or threats, and
बहुत से फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट में जहां से हमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स मिल सकती हैं, और एक बिजनेस का फोकस होना चाहिए कि अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करे और चीजों को अपने अकॉर्डिंग कर सके. Now, organizations depend on the external environments for the inputs required by them and for disposing of their outputs in a mutually beneficial manner. The input-output exchange activity is a continuous process and calls for an active interaction with the external environment. जब हम अपने एनवायरनमेंट को रीड कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, तभी हम देख सकते हैं कि जो हमारा इनपुट आउटपुट एक्सचेंज है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो पा रहा है. इसमें हम लोग इनपुट को भी देखते हैं, आउटपुट को भी देखते हैं. इन दोनों का प्रोसेसिंग, इनपुट का प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद निकलता है आउटपुट, और इन्हीं सारे फैक्टर्स को हम लोग कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स. इनपुट्स में होता है ह्यूमन इनपुट, फिजिकल इनपुट, फाइनेंशियल इनपुट, टेक्नोलॉजिकल इनपुट. फाइनली इन सब चीजों पे हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, आउटपुट निकलता है. इधर इट कैन बी अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. नाउ the next question arises, what are the problems in understanding the environmental influences? अगर हम लोग environment को पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं. The first problem is called the environment encapsulates many different influences. The difficulty is in making sense of this diversity in a way which can contribute to strategic decision making. The second problem is uncertainty. Here we are doing analysis, and analysis is always of the future we are doing here, and it is always uncertain event. Now, if you are not aware how to do the analysis in a particular manner so that we can convert everything in our favor, then definitely we are not able to read the environment perfectly, and we can have problems in future. Now, the third problem is called complexity. Managers tend to simplify complexity by focusing on aspects of the environment which perhaps have been historically important or confirm prior views. But it is not an appropriate base to understand the external influences. Now the next heading is called Why Environmental Analysis. हमें एनवायरनमेंट को क्यों एनालाइज करना चाहिए. इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब हम एनवायरनमेंट को पढ़ रहे होते तो हमें पता चल सकता है कि हमारे आसपास क्या क्या चीजें चल रही हैं. उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करते रहते हैं ताकि हम हर चीज अपने फेवर में कर सकें. Now, environmental analysis helps strategists to anticipate opportunities and to plan to take optional responses to these opportunities. It also helps strategists to develop an early warning system to prevent threats or to develop strategies which can turn a threat to the firm's advantage. अगर हम एनवायरनमेंट को एनालाइज करना जानते हैं तो हम अपॉर्चुनिटीज को देख पाएंगे और तरीके बना सकेंगे ताकि हम अपॉर्चुनिटीज को और अच्छे से यूज कर सकें. और इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि थ्रेट्स क्या क्या हैं बाहर और उन थ्रेट से कैसे बचा जा सकता है. Now, the environmental analysis has three goals. The first is called understanding the potential changes and the current changes, so that हम देख सकें कि आज क्या चल रहा है ताकि हम फ्यूचर को उसके अकॉर्डिंग देखकर बदल सकें. The second goal is called it provides inputs for strategic decision making. जो एनालिसिस है ये बेसिकली अगर हम लोग फ्यूचर में कोई भी डिसीजन बनाने जा रहे हैं तो ये इनको बेस प्रोवाइड करता है. एंड द थर्ड, it facilitate and foster strategic thinking. अच्छा, जब ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट करता है तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. इससे क्या होता है कि हम लोग उन सब पर्टिकुलर आइडियाज को सोच समझ के देख सकते हैं और हमारे फेवर में जो भी चीजें हैं हम उसको यूज कर सकते हैं. और यहाँ पे बहुत से लोग एनालाइज कर रहे होते हैं एक साथ में, इसलिए हमारा टाइम बच जाता है. Next part is called characteristics of business environment. एक business environment में क्या क्या चीजें हैं या फिर उनके characteristics क्या क्या हैं. The first is called complex. Now the environment, it consists of a number of factors, events, conditions, influences, and these all arise from different sources. And although these do not exist in isolation but interact with each other. ये जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं और ये अलग नहीं होती, आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है, इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का बन जाता है. द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड डायनामिक. नाउ इसके अंदर बहुत सी चीजें हो रही होती हैं
इसी वजह से चेंजेस इसमें हमेशा होते रहते हैं। इसके शेप में चेंज हो सकता है, इसके कैरेक्टर में चेंज हो सकता है, यानी कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, और जहां भी चेंज होता है उसी को डायनेमिज्म कहा जाता है। द थर्ड इज कॉल्ड मल्टीफेसेटेड। A particular change in the environment or a new development may be viewed differently by different observers. Basically यहाँ पे हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो environment होता है इसके बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे फेसेस होते हैं। अच्छा, इसको जो एनालाइज कर रहे होते हैं वो लोगों का भी पर्सपेक्टिव अलग होता है, हर कोई अपने अकॉर्डिंग चीजों को एनालाइज कर रहा होता है, इसलिए एक ही फैक्टर के बहुत सारे पहलू दिखाई देते हैं हमें। And the last characteristic is called far-reaching impact. The growth and profitability of an organization depends critically on the environment in which it exists. Any environmental change has an impact on the organization in several different ways. Next is called the components of business environment. कंपोनेंट्स बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि एक जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीच सेंटर में जो है वो होता है फर्म। ना फर्म के साथ होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, यानी कि उसके साथ में क्या क्या चीजें हो रही हैं, लाइक सप्लायर्स, राइवल्स, न्यू एंट्रेंट्स, बायर्स, सब्स्टिट्यूट्स, ये सब के सब हमारे इंटरनली चेंजेस हो रही हैं। अच्छा, इनको चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बाहर का फैक्टर, लाइक इकोनॉमी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, डेमोग्राफी, सोसाइटल वैल्यूज, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। इनका इफेक्ट हमारे अंदर पड़ता है। हम बाहर को देखते हैं कि क्या क्या चीजें बदल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को बदलने लग जाते हैं। जब ये जो इन्वायरमेंट हमें कंपोनेंट्स को हम रीड कर रहे होते हैं तो इसके 4 इन्फ्लुएंसेस पड़ते हैं, यानी कि हमें चेंजेस करनी पड़ती हैं या फिर हमें वहां से चीजें मिल सकती हैं। पहला है, या तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इन्वायरमेंट को देखने के बाद, या तो हम जान सकते हैं कि थ्रेट्स क्या क्या हैं बाहर, और फिर हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेसेस हैं। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। Okay, next point is called environmental scanning. Basically environmental scanning का मतलब होता है कि हम देख रहे होते हैं कि क्या क्या चीजें बदल रही हैं, इसी को कहते हैं environmental scanning, और देखने के बाद हम उन चीजों को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। Now, environment must be scanned so as to determine development and forecast of factors that will influence organizational success. Environmental scanning can be defined as the process by which organizations monitor their relevant environment to identify opportunities and threats affecting their business for the purpose of taking strategic decisions. It is the process of gathering information regarding company's environment, analyzing it, and forecasting the impact of all predictable environmental changes. Now, जब हम लोग स्कैनिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली एनवायरनमेंट का करते हैं, और एनवायरनमेंट हमेशा 2 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट जो होता है बहुत छोटा सा होता है, बेसिकली फर्म से जुड़ा हुआ होता है, फर्म के अंदर होता है, फर्म के आसपास होता है। लाइक इसमें कंज्यूमर होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन खुद होता है, मार्केट होता है, सप्लायर्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स यानी एजेंट्स होते हैं। नाउ इट इज रिलेटेड टू स्मॉल एरिया और इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. Micro environment influences an organization regularly and directly. Within the micro or the immediate environment in which a firm operates, we need to address the following issues, like the employees of the firm. The second, it might be the customer base on which the firm relies for business. The third, it can be like the ways in which the firm can arrange for finance. The next, it can have the firm suppliers and the links between the firm and its suppliers and how to develop the link. And obviously the next is called community in which the firm operates, because if you're against the community, then definitely you cannot do the business. And even competitors, they can be a part of your micro environment. So we have to analyze all those components or elements of micro environment. Now the second environment is called the macro environment. It consists of demographics, economic conditions, socio-cultural factors, political and legal system, technological developments, etc.
अच्छा, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये फर्म के बाहर होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं एक्सटर्नल और मैक्रो एनवायरमेंट। अच्छा, इनका फर्क जो होता है, इनका इफेक्ट जो होता है वो कंपनी के माइक्रो या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट में पड़ता है। इसलिए हमें इन दोनों एनवायरनमेंट को हमेशा एनालाइज करना चाहिए, रीड करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं पेस्टल एनालिसिस। नाउ पेस्टल एनालिसिस बेसिकली हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का एक फॉर्मूला बोल सकते हैं या फिर एक तरीका है, जिसके अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करता है हमारे PESTLE। P इज इक्वल टू पॉलिटिकल, E इज इक्वल टू इकोनॉमिक, S इज इक्वल टू सोशियो कल्चरल, T इज इक्वल टू टेक्नोलॉजिकल, L इज इक्वल टू लीगल एंड E इज इक्वल टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड इनको एनालाइज करने के बाद तो हम लोग तरीके बताते हैं कि कैसे इन इन्फ्लुएंसेस को हम या फिर कैसे ये इन्फ्लुएंस हम पे इफेक्ट करेंगे और कैसे इनके इफेक्ट से बचा जाए और अपने फेवर में इनको किया जाए। फिर आते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट। जब हम लोग एनालाइज करते हैं अपने इन्वायरमेंट को तो हम क्या क्या रिस्पॉन्स देते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट बिजनेस शुड डू इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन द इन्वायरमेंट। Strategically, the businesses should make efforts to exploit the opportunity and nullify the impact of threats. Any organization may follow different approaches, like it may be least resistance, यानी कि जो चीजें चल रही हैं हम उसके साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं, रेजिस्ट नहीं करते। सेकेंड इज कॉल्ड प्रोसीड विद कॉशन। हम लोग चीजों को एनालाइज कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि क्या क्या चीजें बदल रही हैं, उसके साथ साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपने आप को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग कोशिश करते हैं कि ढाल लिया जाए। थर्ड इज कॉल्ड डायनामिक रिस्पॉन्स। ये सबसे ज्यादा अग्रेसिव रिस्पॉन्स होता है। इसमें क्या होता है कि हम अपने आप को पूरा का पूरा चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नाउ businesses that regard the external environment forces as partially manageable and controllable by their actions, हम सोचते हैं कि हम सारे के सारे फैक्टर्स को अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, तो यह है डायनामिक रिस्पॉन्स। फिर आते हैं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। A better understanding of the nature and extent of competition may be reached by answering the following questions. अगर आप कंपटीशन को एनालाइज करना चाहते हो, आप देख सकते हो कि क्या चीजें चल रही हैं कंपटीशन में और क्या लेवल वगैरह चल रहा है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ते हैं। लाइक द फर्स्ट, who are the competitors? Second, what are their products and services? Third, what are their market shares? Fourth, what are their financial positions? Fifth, what gives them the cost and price advantage? Sixth, what are they likely to do next? And the last is called, who are the potential competitors? इन सब क्वेश्चंस के जब हमें जवाब मिल जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपने कंपटीशन को एनालाइज किया जाए और अपनी स्ट्रेटेजी को उसके अकॉर्डिंग प्लान किया जाए। The next important concept in this chapter is called Porter's 5 Forces Model Competitive Analysis. Now, it is a powerful and widely used tool for systematically diagnosing the significant competitive pressures in a market and assessing the strength and importance of each in the this is called the 5 forces model of competition. हम इसमें एक एक फैक्टर को एनालाइज करते हैं और जहां से कंपटीशन हो रहा है और देखते हैं कि स्ट्रेंथ और इंपॉर्टेंस कितना है इन पांचों फैक्टर्स का। नाउ इसमें हम लोग कोशिश करते हैं एनालाइज करने के लिए 5 फैक्टर्स। द फर्स्ट इज कॉल्ड कि राइवल सेलर्स जो हमारे हैं वहां से हमें कॉम्पिटिटिव प्रेशर कितना मिल रहा है और वो क्या कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड फैक्टर होता है न्यू एंट्रेंट। न्यू एंट्रेंट बेसिकली हम लोग जब बिजनेस कर रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट का तो कुछ टाइम के बाद कुछ लोग उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को बेचना स्टार्ट करते हैं एंड दे आर कॉल्ड न्यू एंट्रेंट। ऑब्वियसली जब ये आएंगे तो हमारा थोड़ा सा मार्केट शेयर खत्म होगा। द थर्ड इज कॉल्ड प्रेशर फ्रॉम ओन सब्सटीट्यूट। अब हम लोग कुछ प्रोडक्ट बना के बेच रहे थे, अचानक हमने दूसरा प्रोडक्ट बना दिया तो हमारा पहले वाला प्रोडक्ट जो है मार्केट में बिकना कम हो गया, इसी को कहते हैं ओन सब्सटीट्यूट। The fourth is called bargaining power of suppliers and the last is called bargaining power of buyers. अच्छा, माइकल पॉटर कहते हैं कि from the point of view of a firm हमें कोशिश करना चाहिए कि ये पांचों फैक्टर्स में कंपटीशन खत्म कर दिया जाए।
यानी कि यूजुअली लोग बोलते हैं सर कंपटीशन अगर कम होगा तो अच्छा होगा, लेकिन कंपटीशन जब कम होता है वो सिर्फ जो बायर्स हैं उनके लिए अच्छा होता है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन इज नॉट गुड। नाउ माइकल पॉटर सेज कि इन पांचों फोर्सेस को अगर कंपटीशन हटा दिया जाए तो फर्म को हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता रहेगा। लाइक अगर हम राइवल सेलर्स की बात करें, अगर आप राइवल सेलर्स को आने ही ना दो कंपटीशन में तो ऑब्वियसली आपका मार्केट शेयर बचा रहेगा। सेकंड इसको न्यू एंट्रेंट, अगर आप नए लोगों को मार्केट में मत आने दो तो कंपटीशन हो ही नहीं सकता और आपका शेयर कोई ले नहीं सकता। द थर्ड इज कॉल्ड ओन सब्स्टिट्यूट। लाइक फॉर एग्जांपल जब बजाज ने बाइक निकाली थी कैलिबर तो वो बहुत बिका था, उन्होंने फिर निकाला बाइक डिस्कवर, लेकिन डिस्कवर बिक नहीं पाया क्योंकि सब्स्टिट्यूट था वहां पे कैलिबर। तो बजाज ने क्या किया, कैलिबर बाइक को बंद किया, जिसकी वजह से फिर डिस्कवर का मार्केट क्रिएट किया गया। फिर आता है सप्लायर बार्गेनिंग पावर। लाइक अगर कंपनी के पास एक ही सप्लायर है तो डेफिनेटली वो आपको ब्लैकमेल करेगा, बट मारुति ने क्या किया, उसने बहुत सारे सप्लायर्स को एक जगह पर लगा लिया। इससे क्या होता है कि मारुति और सप्लायर के बीच में कंपटीशन खत्म हो गया। अब मारुति मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, यानी कि वो लोगों पे कंट्रोल कर सकता है, जिससे चाहे उससे सामान खरीद सकता है। एंड द लास्ट इज कॉल्ड बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। लाइक अगर आप सड़क पे सामान खरीद रहे हैं तो आप वहां पे बार्गेनिंग कर सकते हैं, और ऑब्वियसली जब कस्टमर बार्गेनिंग करता है तो बिजनेस को नुकसान होता है। लेकिन जब हम लोग मॉल में जाके सामान परचेज करते हैं तो वहां पे बार्गेनिंग नहीं की जाती एंड ऑब्वियसली कंपनी को फायदा मिलता है। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी की जाए जिसमें बार्गेनिंग पावर बायर का खत्म हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड माइकल पॉटर्स 5 फोर्सेस। Now the next concept is called global business. Okay, global business का मतलब होता है कि अगर आज एक कंपनी सिर्फ एक ही कंट्री में काम कर रही है, इसका मतलब वो बिजनेस कर ही नहीं है। एंड एक ही कंट्री में बिजनेस करना इट्स नॉट अ बिजनेस टुडे। जब तक आप ग्लोबली बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। It is said, in terms of business, if you are doing business locally, then you are doing it locally. If you want to improve, if you want to grow, then go global. After WTO, बहुत सारे ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट्स आ गए बिजनेस में जो कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत मदद करने लग गए। नाउ बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं ग्लोबल जाने के। लाइक कुछ फायदे, अगर आप ग्लोबल जाते हैं तो सबसे पहला होता है लाइक हमारे अगर मार्केट सैचुरेशन की बात करते हैं तो आपके लोकल मार्केट में अगर सैचुरेट हो गया है मार्केट तो हम ग्लोबल जा सकते हैं। दूसरा, हमें फॉरेन कंपटीशन देखने को मिलता है जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ प्लस हो सकता है कभी कभी कोई कंट्री हमें स्पेशल प्रोग्राम देती है जिसमें हमें फायदा मिल सकता है। एंड इवन ग्लोबल जाने का एक फायदा है कि हमें नया मार्केट क्रिएट करने का मौका मिलता है, हमें नए लोग मिलते हैं जिनके साथ हम अलायंस वगैरह कर सकें। हो सकता है कि कुछ कंट्रीज में टैक्स वगैरह कम होता है तो हम वहां से अपने टैक्स को बेनिफिट मिल सकता है। कुछ कंट्रीज में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता है, अगर हम वहां पे जाके बिजनेस करते हैं तो हमें कॉस्ट में भी कम होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगा। कभी कभी हम अपने लोकल एरिया में अपने पूरे कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होते तो बाहर जब जाते हैं तो अपने कैपेसिटी को हम फुल्ली शायद यूटिलाइज कर भी सकें। प्लस जब हम ग्लोबल बिजनेस कर रहे होते तो हमें नए नए टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल्स, सब कुछ अवेलेबिलिटी जो बड़े अच्छे से आसानी से हो जाती है। प्लस कभी कभी नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना या उनके टेस्ट के लिए भी ग्लोबल अगर हम जाते तो हमें फायदा होता है। फायदों के साथ नुकसान भी है, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट। अब अगर आप ग्लोबली बिजनेस कर रहे हो तो आप उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। द सेकंड माइट बी रिसोर्स एलोकेशन। अगर आप पूरी दुनिया में आपका बिजनेस है तो आप डिपेंड करता है कि रिसोर्स को कैसे एलोकेट कर रहे हो सारे कंट्रीज आपके बिनो फॉर्म के बीच में। तीसरा है लीडरशिप। अब आपका बिजनेस जो है वो ग्लोबली स्कैटर्ड होगा, अब लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिजनेस को कैसे चला पा रहे हैं। एंड द लास्ट माइट बी प्लान्स एंड पॉलिसीज। आप जो भी बिजनेस बना रहे हो ऑब्वियसली किसी फॉरेन कंट्री में जाके बना रहे हो तो हो सकता है कि आपके लोकल कंट्री का जो आपने प्लान एंड पॉलिसी बनाया था वो शायद फॉरेन कंट्री में वो जो चीजें काम ना कर पाए। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स रिगार्डिंग डूइंग बिजनेस ग्लोबली।